Good morning. Today is 23rd of May 2023, and here is Mangesh Naneshwar Borkar sir, Director, Sambodhi Career Academy, Thane. So yesterday we started our discussion on overall pattern of NDA and NA examination. At the same time, I discussed with you the recent vacancies declared for NDA and NA examination, that is 395 vacancies. And those students who have just completed their 11th standard and appearing for 12th standard, so they can enroll for that examination, okay, by 6th of June 2023. Okay, so ज्या लोकांचं 11वी होऊन 12वीला जे गेलेले आहेत ते लोक त्या एक्झामिनेशन साठी अपियर होऊ शकतात. ओके, तर काल याच्याबद्दल सांगितलं. काल आपण पॅटर्न डिस्कस केला. मॅथ्सचा एक पेपर, जनरल ॲबिलिटी टेस्टचा एक पेपर. मॅथ्सच्या पेपरमध्ये आपण सांगितलं 120 क्वेश्चन्स असतात, 300 मार्क्स असतात आणि 150 मिनिट्स असतात. ठीक आहे. सेकंड, जनरल ॲबिलिटी टेस्ट मध्ये आपण सांगितलं की इंग्लिशचा एक पेपर असतो, इंग्लिशचा एक सेक्शन असतो, 50 क्वेश्चन्स असतात, त्याच्यामध्ये 200 मार्क्स असतात. आणि जे बाकीचे जे सेक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जिओग्राफी आणि करंट अफेअर्स. हिस्ट्रीमध्ये एन्शियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री आणि सोबतच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकॉनॉमी हा पोर्शन सुद्धा त्याच्यामध्ये विचारला जातो. सो आज मी जे डिस्कशन तुमच्यासोबत करणार आहे दॅट इज रिलेटेड टू दॅट स्पेसिफिक सेक्शन. ओके, सो जसं काल आपण डिस्कस केलेलं होतं, ओके, या पोर्शन वरती आपण डिस्कशन केलेलं होतं काल. So now this is history section. Okay, this is history section, carries 20% portion out of 50 questions. म्हणजे 20 क्वेश्चन जे आहेत ते हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन आणि इकॉनॉमी म्हणजे मेजरली हिस्ट्रीशी रिलेटेड याच्यावरती क्वेश्चन्स येतील. सर्वांना दिसतंय? हो सर. हा, ओके. याच्यामध्ये बघा जे येतात, मी अगदी शॉर्ट मध्ये घेईल कारण नंतरचं सेक्शन जे आहे. सो Kunal will conduct next session. Okay, and then after third session, that is especially for maths and few experiences of interview. Okay, that is SSB. So आता बघा इथे दिलेलं आहे फ्रीडम मुवमेंट, राईट. म्यूट करून ठेवा प्लीज सर्वांनी. Here it is given freedom movement, a broad survey of Indian history with emphasis on culture and civilization. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर म्हटलेलं आहे की फ्रीडम मुवमेंट इन इंडिया. ओके, देन एलिमेंटरी स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देअर अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन. एलिमेंटरी नॉलेज ऑफ 5-year प्लान्स, पंचायत राज, कोऑपरेटिव्ह अँड कम्युनिटी डेव्हलपमेंट, भूदान, सर्वोदया, नॅशनल इंटिग्रेशन अँड वेलफेअर स्टेट, बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी. At the same time, this portion is related to world history. Okay, forget about this. याच्यावरती काय क्वेश्चन येतं ना, like when they mention a broad survey of Indian history. So Indian history in a single word, okay, in a single this thing, they have mentioned that Indian history, a broad survey. So Indian history consists of prehistory. If you see prehistory, are you aware about prehistory? So that is ages: Paleolithic age, Neolithic age, Mesolithic age. So basically history, the preparation or the study of history starts from these ages. ज्यावेळेस माणूस हंटिंग गॅदरिंग फेज मध्ये होता त्यावेळेस पासूनचा इतिहास सुरू होतो. Okay, then we have another important topic, that is Indus Valley civilization. Okay, all of you must be aware about IVC, that is Indus Valley civilization. Are you aware about Indus Valley civilization?
मोहेंजोदड़ो, हडप्पा, माहिती आहे तुम्हाला लोकांना? Yes, sir. Yeah, so in examination they can ask you question related to IBC also, Indus Valley Civilization. Okay, different spots of Indus Valley Civilization, right? Then they can ask you about Vedic period, Vedas, okay, Vedic period, Yajurved, Rigved, Samaved, Atharvaved, etc., etc. Okay, and then so many socio-economic, political, religious features of this Indus Valley Civilization, Vedic culture, okay, or the Vedic period. Then we have, you can have question on Buddha, okay, Mahavira, or we can say Buddhism and Jainism. Okay, so these are important topics for your examination. Then we can have questions related to another topic that is called as Mahajanpad. Okay, Mahajanpad. Are you aware about Mahajanpad? Have you heard this word Mahajanpada? तुम्हें ऐकलाय का हा शब्द Mahajanpad? Have you heard this word Mahajanpada? 16 Mahajanpadas, Magad, Anga, so many 16 Mahajanpadas. And the first reference of this 16 Mahajanpadas that is mentioned. That is mentioned in Anguttara Nikaya, which is a Buddhist text. Okay, Anguttara Nikaya, which is a Buddhist text. Okay, and then there is another reference of Mahajanpada in Jaina text also, which is called as Bhagavati Sutra. Okay, so basically with respect to history, ancient Indian history, medieval Indian history, and the modern Indian history. Ancient, medieval, and modern. Okay, so these are the three portions. So right from Indus Valley Civilization, Buddhism, Jainism, Rigvedic period, Mahajanpadas, Mauryas, that is Ashok Mauryas, Chandragupta Maurya, post Maurya, Mauryam के बाद, okay, और फिर Gupta period, Chandragupta first, Chandragupta second, Kumargupta, Skandagupta, and then afterwards हर्षवर्धन. तो ये सारा हिस्ट्री में है. मतलब उन्होंने सिर्फ मेंशन किया है यहाँ पे कि ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री. सो ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी एनडीए के क्लासेस में ये सारी चीजें पढ़ाते नहीं है. वो केवल बुकलेट दे देते हैं जनरल नॉलेज का और बोलते हैं कि पढ़ो आप खुद से. ओके, ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. एंड एट अवर संबोधि करियर एकेडमी वी टीच दिस एंटायर सेक्शन. हम यहाँ पे हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी के कुछ जो भी उन्होंने मेंशन किया है वो सब हम बताते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है. ओके, दिस इज नॉट अ वन डे टास्क. टुडे आई कैन जस्ट क्लियर योर ideas about the syllabus, what is mentioned. So this particular thing consists of ancient to medieval and medieval to modern history, including freedom struggle movement. Then we have Sultanate period. Okay, we have Sultanate. You must have heard about different dynasties of India. Okay, उसमें slave dynasty है जिसका कुतुबुद्दीन ऐबक था, शायद आपने नाम सुना होगा. इल्तुतमिश था, रजिया सुल्ताना थी. ठीक है, उसके बाद इसमें खलजी है, खलजी, अलाउद्दीन खलजी, जलाउद्दीन खलजी. फिर तुगलक है, तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक. फिर सईद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी है. ये जो इसका लास्ट जो था इब्राहिम लोधी का वॉर हुआ था बाबर के साथ, और बाबर के साथ वॉर होने के बाद बाबर एस्टैब्लिश मुगल एम्पायर इन इंडिया और द मुगल स्टेट इन इंडिया इन 1526. ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. और जैसे ही बाबर या फिर मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है भारत में, सो विद दैट वी कैन सी डिफरेंट अदर रूलर्स आल्सो. which were those other rulers? बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं है, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर है, अकबर के बाद उसका जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब. दिस मच हिस्ट्री एंड दिस इज कॉल्ड एज मुगल. और औरंगजेब के बाद का जो हिस्ट्री है वो है पोस्ट मुगल्स. हो सकता है इस पे भी कोई आपको क्वेश्चन आ जाए कल्चर से रिलेटेड. जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि कल्चर एंड सिविलाइजेशन.
सो कल्चर में आपको पेंटिंग्स पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू लिटरेचर, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिफरेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, किसी फोर्ट का नाम पूछ लिया है ना, जैसे ताजमहल के बारे में आप सभी को पता है, तो दे कैन आस्क अबाउट ताजमहल, दे कैन आस्क अबाउट रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, दे कैन आस्क अबाउट जामा मस्जिद, they can ask about Mughal paintings, they can ask about so many constructions, okay, so many cultural aspects, right from ancient to medieval and medieval to modern, okay. देखो अभी टाइम मेरे पास कम है क्योंकि आज दूसरे भी फैकल्टीज अभी सेशंस लेने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज को ज्यादा ये नहीं दूंगा, लेकिन जब रेगुलर हमारे सेशंस रहते हैं रेगुलर कोचिंग्स में, तो उस समय हम ये सारा बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट करते हैं, पढ़ाते हैं। हालांकि हम केवल बताते नहीं, पढ़ाते इस चीज को, ओके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंड इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री what is there in modern Indian history? In modern Indian history, we have European, okay, arrival of Europeans in India. So in with this European arrival, we have Portuguese, we have Dutch, okay, we have British, we have Danes, and we have French. Are you aware about Danes? Danes पता है आप लोगों को? Danes जो थे वो पता है आप लोगों को? Have you read about Danes? Because you must have heard about Portuguese, आपने सुना होगा, Dutch सुना होगा, British सुना होगा, French सुना होगा। Danes के बारे में किसी को पता है? कुणाला माहिती है Danes? नहीं माहिती, ठीक है, ओके ओके। सो Danes were another European ruler, okay, those who arrived in India. Danes जे होते ते भारतामध्ये जसे बाकीचे लोक आलेले होते तर तशाच पद्धतीने डेन्स सुद्धा भारतामध्ये आलेले होते, ओके. नाउ आफ्टर दिस व्हॉट इज अनदर मोर इम्पॉर्टंट थिंग, ओके. याच्यानंतर आणखी काय महत्वाचं आहे तर या लोकांच्या बॅटल्स, इनके सब जिनकी भी जो भी ब्रिटिश भारत में आए तो इनकी बॅटल्स, तो यू मस्ट बी अवेअर अबाउट बॅटल ऑफ प्लासी, ऐकलं असेल सगळ्यांनी, बॅटल ऑफ प्लासी, बॅटल ऑफ बक्सार, है ना, बैटल ऑफ बक्सार। हो सकता है पूछ लेंगे वो एग्जाम्स में, ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे वुड आस्क यू क्वेश्चन, है ना, बैटल ऑफ बक्सार, बैटल ऑफ प्लासी, है ना। उसके बाद जैसे 3 बैटल्स हुई पानीपत की, सो दैट अबाउट दैट आल्सो दे कैन आस्क यू अबाउट 1857 रिवोल्ट जो हुआ 1857 का, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स दे कैन आस्क यू अबाउट पोस्ट रिवोल्ट, रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, ओके, पोस्ट रिवोल्ट, रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, एंड देन दे कैन आस्क यू अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, ओके। सो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में फिर बिफोर द इमर्जेंस ऑफ गांधी जी, अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने कि द बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। सो इन एग्जामिनेशन यू मे गेट अ क्वेश्चन कि व्हाट वर द बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की बेसिक टीचिंग्स क्या थी। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के एग्जामिनेशन में कि महात्मा गांधी की जो कोर फिलोसॉफी थी उसके 2 एस्पेक्ट्स क्या थे, व्हाट वर द 2 एस्पेक्ट्स। सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट वर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस थिंग। सत्य और अहिंसा। Yes, Satya and Ahimsa. Okay, so these were the 2 aspects of Mahatma Gandhi's philosophy. So likewise, they can ask you other questions. महात्मा गांधी जी के मूवमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, उनकी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, उसके बारे में पूछा जा सकता है। एट द सेम टाइम दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोशियो रिलीजियस cultural movement in India. Okay, so they can ask you about the movement of suppose Brahmo Samaj, Raja Ram Mohan Rai, Dayananda Saraswati, okay, Arya Samaj, Swami Vivekananda. At the same time, they can ask you about the movements of lower caste in India, like Periyar, E.V. Ramaswamy Naikar, okay, Narayan Guru, okay, the movement by Mahatma Jyotiba Phule, Rajarshi Shahu Maharaj, Dr. Babasaheb Ambedkar. So these kind of questions are also possible in your modern Indian history, political movements and
social movements. Okay, and then freedom struggle movement. With respect to freedom struggle movements, Swadeshi movement, the movements of Congress party, the different sessions of the Congress party. Okay, then movement under Gandhi ji, and then finally revolutionary movement in India under the leadership of Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Chandrasekhar Azad, Ras Behari Bose, etc., etc. And then sometimes they can ask you post independence development also. स्वतंत्रता के बाद का जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में भी वो आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, तो यहां तक ध्यान में आया सभी को? इतपर्यंत लक्षात आलं with respect to history? With respect to history, so these are the things which are important with respect to history. Okay, now they have mentioned Indian history also. They have mentioned Constitution of India also, Indian Constitution, यहाँ पे Constitution and administration. So elementary study of Constitution. So when we talk about Indian Constitution, so Indian Constitution is it's not a small subject. It consists of so many things. काय काय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये पहिले तर गोष्ट आहे तुम्हाला प्रिएम्बल समजणं आवश्यक आहे. प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रारूप संरचना. We the people of India having solemnly resolved to constitute into India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. आपके बुक्स में, स्कूल के बुक्स में प्रिएम्बल लिखा हुआ रहता है. पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ सर. या आप लोगों ने पढ़ा है. सो प्रिएम्बल, फिर प्रिएम्बल में मेंशन क्या रहता है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह सब है ना. उसके बाद फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये सारा कुछ मेंशन किया रहता है. तो प्रिएम्बल को सबसे पहले समझना है. उसके बाद जब प्रिएम्बल को समझते हैं तो उसके एप्लीकेशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32. ओके, फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. ओके, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज है. और इसी के साथ हमारे देश में जुडिशियरी है. ओके, जुडिशियरी न्यायपालिका, जिसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप लोगों ने सुना होगा. उसके बाद एग्जीक्यूटिव है. एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, ये सारी बातें हैं. अब ये जो बातें हैं ना, ये मैंने सिर्फ आपको जस्ट अभी बता दिया और आपको इमीडिएटली थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ सिलेबस. क्योंकि सिलेबस में हमको एक लाइन सिलेबस दिया है, बट दिस इज द इलेबोरेशन ऑफ सिलेबस. इसके ऊपर आपको तैयार करना है. बिकॉज 20% आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, 20 questions are associated with, in general study the section, 20 questions are associated with your history, with your constitution and few 5-year plans. Okay, तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आएंगे हिस्ट्री पे. उसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री में फिर आपका रिनाइसेंस हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, फिर आपका रशियन रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे. फिर 2-4 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन पे आ सकते हैं, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स पे आ सकता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, जो सरकार के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ये आपको 20 क्वेश्चंस के लिए, ओके, 20 क्वेश्चंस के लिए रहेगा. और उसी के साथ उसमें आपको 5-year प्लान्स, जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, वैसे वो मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, तो 5-year प्लान्स के बारे में भी पूछा जा सकता है. भारत में कितने 5-year प्लान्स हुए, कब से स्टार्ट हुए, कौन से प्लान्स में क्या क्या हुआ, रोलिंग प्लान किसे कहते हैं, एनुअल प्लान किसे कहते हैं. ओके, कौन से प्लान सक्सेसफुल थे, कौन से नहीं थे, कौन से प्लान्स में कौन सी योजनाएं इंप्लीमेंट की गई. ऑल दीज क्वेश्चंस आर पॉसिबल इन योर economy section, small economy section. At the same time, few other questions related to economy. So this is a discussion of this syllabus. ये section 50 questions में से 20 questions इस section पे आपको आएंगे. तो आपको अगर मैंने केवल, जैसे नॉर्मली काफी सारे कोचिंग क्लासेस में यही होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे भी, मुंबई में भी हमारे पास जब आते हैं इधर उधर से सारा मार्केट घूम के, और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि कोचिंग करके आते हैं, रिपीटर्स होते हैं हमारे पास, जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, एमपीएससी
और बाकी कोर्सेज के लिए हमारे पास रिपीटर्स आते हैं, तो एनडीए के लिए भी हमारे पास रिपीटर्स आते हैं। तो हम जब पूछते हैं उनको कि भाई आपको हिस्ट्री पढ़ाया गया है क्या, तो मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि दे नीड टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उनको केवल मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ दिया जाता है नोट्स फॉर्मेट में। तो केवल नोट्स देने से इस एग्जामिनेशन में आप ये मत सोच लेना कि क्वालिफाई हो जाओगे। एंड दिस इज, if you want to qualify, the most important thing is that you should not skip anything. Okay, मतलब जनरल स्टडीज में ये जो ह्यूमैनिटीज का सेक्शन है, इसमें तो आपको कुछ स्किप करना ही नहीं है। ओके, इफ यू आर स्किपिंग यू आर लूजिंग योर मार्क्स। और केवल किसी नोट्स को पढ़ के इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, हाँ, तो इसके ऊपर आपको काम अच्छे से करना है, ठीक है। देन वी हैव ज्योग्राफी। ओके, दिस सेक्शन इज ऑल्सो फॉर 20%, है ना, 20% इसके भी ऊपर कंट्रीब्यूशन है। तो अर्थ, इट्स शेप एंड साइज, ओके, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, कंसेप्ट्स ऑफ द टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी ये तो छोटे छोटे कंसेप्ट है, लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है, ये तो छोटे कंसेप्ट है। अर्थ के बारे में मैंने कल बताया था कि अर्थ का जो शेप होता है दैट इज कॉल्ड जियोइड। ओके, उसके बाद फिर मोमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स। सो मोमेंट्स ऑफ द अर्थ, सन मून पे क्या है ना। फिर ये होता है, हम लोग देखते हैं कि वी हैव सीजन्स, वी हैव डे एंड नाइट्स, है ना। सीजन्स है हमारे यहाँ पे, डे एंड नाइट्स है हमारे यहाँ पे। फुल मून होता है, ओके, फुल मून डे होता है, पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है। तो क्यों होता है? ओके, ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड ऑलरेडी यू पीपल स्टडीड ऑल दिस थिंग्स एट योर स्कूल लेवल। आपने ये सारी चीजें स्कूल में पढ़ी है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। रॉक्स अलग अलग, आप भारत में या संपूर्ण देश में अलग अलग जगहों पे जाओगे तो यू वुड फाइंड डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ रॉक्स। तो व्हाट इज द रीजन, है ना, रीजन क्या होता है। लाइकवाइज सॉइल ऑल्सो, व्हाई सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया, इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड इज डिफरेंट। in Maharashtra, if you are going to the western coast, then there is a laterite soil. If you are going to the eastern part of Maharashtra, then the soil is black soil, है ना। तो डिफरेंस क्यों है? कहीं पे येलोइश है, कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे लैटेराइट है, राइट, कहीं पे रेड सॉइल है। तो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई? तो कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ज्योग्राफी इज अ सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट। इट रिक्वायर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, एट द सेम टाइम इट रिक्वायर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैप्स। मैप्स का आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, वेदरिंग, मैकेनिकल एंड केमिकल, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, ओशन करंट्स, ओके, टाइड्स, एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन। तो देखो ओशन करंट दिया है, मतलब क्या है ये, दिस इज ओशनोग्राफी। हाँ, आपको पता होगा कि वार्म करंट होते हैं और कोल्ड करंट होते हैं। आर यू अवेयर अबाउट दैट? वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स हाँ इन सर। ओशनिक। यस, वार्म करंट्स होते हैं एंड देन कोल्ड करंट्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे टाइड्स होती है, राइट। टाइड्स के अलग अलग प्रकार है, जैसे आपण मराठीमध्ये आपण म्हणतो भरती आणि ओटी, है ना, भरती। ओके, सो टाइड्स। ओके, देन एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन। अगर एटमॉस्फेयर की मैं बात करूंगा तो व्हाट इज देयर इन एटमॉस्फेयर, ये यहाँ से अगर पृथ्वी से लेते हैं, है ना, तो फिर क्या है, फर्स्ट स्फीयर कौन सा है, स्ट्रेटोस्फीयर है कि ट्रोपोस्फीयर है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्झोस्फीयर, राइट। विमानं कोणत्या स्फीयर मध्ये उडतात? ओझोन लेअर कोणत्या स्फीयर मध्ये असते? वेर इज ओझोन लेअर, वेर वी कॅन फाइंड द जेट इज फ्लाइंग या एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग, इन विच स्फीयर? सी, ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट हैव स्टडीड ड्यूरिंग योर स्कूल डेज। ये स्कूल का ही बता रहा हूं मैं, ये स्कूल का ही बता रहा हूं। अगर आपके पास स्कूल की बुक्स है 7th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की, तो उसको रिवाइज कर लेना। सीबीएसई बोर्ड के हो या स्टेट बोर्ड के हो, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। देन वी हैव प्रेशर, प्लैनेटरी विंड, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। साइक्लोन्स देखो, अभी भी अपने न्यूज सुनी होंगी साइक्लोन के बारे में, ठीक है ना। साइक्लोन अभी आया था रिसेंटली, ठीक है, साइक्लोन का इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे देखो बारिश हो रही है, मतलब वी डोंट रिक्वायर रेन। ओके, रेन, द व्हाट इज द टाइम ऑफ मानसून रेन? मई एंड से स्टार्ट हो जाता है केरला के साइड से, और जून में बाकी राज्यों में आता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि फरवरी में भी बारिश आ रही है, मई में भी आ रही है, अप्रैल में भी आ रही है, कोई भी महीना नहीं छोड़ रहा है वो, ठीक है। सो दैट इज
that is a very like difficult situation. So why this thing is happening? Why this thing is happening? So because of geographical conditions, climatic conditions, because of the ozone layer depletion, okay, because of greenhouse gas effect, काफी सारी ऐसी फिनोमिनास है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. Okay, so you need to study cyclones, anticyclones, humidity, condensation, precipitation. Precipitation means what? बारिश. Precipitations मतलब बारिश होना, रेन होना. Okay, raining. Then types of climate. Okay, then major natural vegetation, mineral and power sources. Minerals. Okay, minerals जो जमीन के अंदर मिलते हैं, minerals. ठीक है. Then power resources, location, distribution of agriculture and industrial activities. So we need to study agriculture also. We need to study industrial development also. Important ports and main sea. If I ask you a question related to Mumbai, which port is located near Mumbai? Which is important port near Mumbai? मुंबई के पास कौन सा इंपॉर्टंट पोर्ट है? महत्वाचा पोर्ट कुठला आहे मुंबईच्या जवळ? अरे मुंबई जवळ कुठला पोर्ट आहे? अच्छा, टेल मी एनी पोर्ट ऑफ एनी पोर्ट इन इंडिया, एनी मेजर पोर्ट इन इंडिया. कांडला का नाम सुना है? कांडला. JNPT. या फातिमा शी हैज मेंशन JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. ठीक है, JNPT. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. हाँ चलो ठीक है. ओके, कांडला का नाम सुना है? वेयर इज कांडला? कांडला बंदर कहाँ पे लोकेटेड है? कांडला पोर्ट गुजरात में है. ओके, गुजरात में है. ये आंध्र प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उसका नाम क्या है? पट्टनम. पट्टनम कोई नाम है पट्टनम से जुड़ा हुआ? आंध्र प्रदेश. चलो ठीक है. तो आप लोगों ने आपकी स्कूल की पढ़ाई सिर्फ रट्टा मार के की है, बाकी कुछ नहीं किया आप लोगों ने, राइट? आपने केवल रट्टा मारा है. विशाखापट्टनम. हाँ, विशाखापट्टनम. तुम्ही फक्त मच्छलीपट्टनम इज ऑल्सो राइट. हाँ, बट मच्छलीपट्टनम इज नॉट मेजर पोर्ट, विशाखापट्टनम इज मेजर पोर्ट. सो आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों को ये आदत छोड़नी होगी. पढ़ाई अगर अच्छे से करनी है तो मैंने कल ही बताया था कि मगप मत करो, रट्टा मारो मत. आपको समझ के ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस, मतलब जो भी पढ़ाई करोगे व्हाटएवर, नॉट मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जहाँ पे कंसेप्ट की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है. सारे सब्जेक्ट्स को समझने की जरूरत होती है ना? तो पढ़ाई करना है तो पढ़ाई समझ के करो. केवल ऐसे ही पढ़ाई करोगे तो पॉसिबल नहीं है. एंड दिस इज नॉट अप्लीकेबल जस्ट फॉर NDA और एनी एग्जामिनेशन. This is applicable for your further studies also. And if you skip this examination further, मेरे कांटेक्ट में रहो, मैं आपको IAS IPS बना दूंगा. जैसे अगर ये नहीं हुआ, CDSC नहीं हुआ फर्दर जाके, तो मैं आपको UPSC सिविल सर्विसेज के एग्जाम से डायरेक्टली एट द एज ऑफ 22 IAS IPS बना सकता हूँ. तो उसके लिए भी व्हाट इज रिक्वायर्ड? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. पढ़ाई जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करनी होती है. रट्टाफिकेशन करके कोई क्वालिफाई नहीं हो सकता. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई आप नहीं हो सकते अगर रट्टा मारते हो तो. ठीक है, कुछ जगह पे इंपॉर्टेंट है लेकिन हर जगह पे नहीं चलता है वो. ओके, देन वी हैव लैंड एंड एयर रूट्स ऑफ इंडिया. ऐसे ओके, देन पोर्ट्स एंड मेन सी, लैंड एंड एयर रूट्स ऑफ इंडिया, मेन आइटम्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया. जैसे सपोज हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, है ना? ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड. ओके, या और फिर हम एग्रीकल्चर आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं. काफी सारे एग्रीकल्चर आइटम्स जो डेवलप कंट्रीज है वो टेक्नोलॉजी हमें एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो हमसे एग्रीकल्चर आइटम्स इंपोर्ट करते हैं, राइट? सो यू नीड टू स्टडी कि व्हाट वी इंपोर्टेड, व्हाट वी एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमने क्या लिया और हमने क्या भेजा विद रेस्पेक्ट टू इंडिया. तो इस तरह से ज्योग्राफी है. तो ज्योग्राफी में आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ आएगा, एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ आएगा, अर्थ के नीचे का, अर्थ के ऊपर का और अर्थ का सब कुछ आपको ज्योग्राफी में आएगा. करंट अफेयर्स के बारे में मैंने आपसे कल ही डिस्कशन की थी. करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि रेगुलर न्यूज चैनल्स देखना शुरू करो, हाफ एन आवर एटलीस्ट, और एक अच्छा कोई न्यूज़पेपर जो है वो स्टडी करो. तो ओवरऑल जिस पोर्शन पे मैंने अभी बात की, जिस पोर्शन पे मैंने अभी बात की, दिस सेक्शन और करंट अफेयर सेक्शन. करंट अफेयर्स पे अपने कल बात की थी, तो इसके ऊपर
50 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके ऊपर का जो ये सेक्शन है जनरल साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसके ऊपर 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, इसके ऊपर 50 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 100 क्वेश्चंस का सेक्शन रहेगा। और जो एक सेक्शन है, सेक्शन ए ऑफ जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसका वो इंग्लिश का रहेगा, उसके ऊपर 50 क्वेश्चंस। तो कैसे 200 200 200 कितने हो गए? 600 मार्क्स। 600 मार्क्स में से 600 हाँ 600 मार्क्स आउट ऑफ 600 मैंने बताया था कि इसमें आपको अगर 300 मार्क्स मिल जाते हैं, 50% इसमें आप स्कोर कर सकते हो। और मैथ्स में आपको, आपका जो पेपर है मैथ्स का वो 300 का है, 300 में से आपको मिनिमम अगर 100 भी मिलते हैं तो 100 प्लस 300 मतलब हो गए 400। ठीक है, 400। और आपको स्कोर बढ़ाने का स्कोप है। फर्स्ट पेपर में आप मतलब मैथ्स में आपको अगर 25 मार्क्स और मिल गए तो उधर 25, इधर अगर 25 मिल गए तो 450 मार्क्स। 450 मार्क्स आपका द बेस्ट स्कोर रहेगा। और एसएसबी के लिए मैंने बताया था कि 900 मार्क्स में से वहां पे अगर आपको 450 मार्क्स मिल गए तो वहां पे भी आपका जो स्कोर है वो द बेस्ट रहेगा। ओके, सो दिस इज माय सेशन, this is my session related to your what you can say general studies. Okay, general studies. huh? So any question related to this session? कोणाला काही प्रश्न आहे या सेशन संदर्भात? आवाज येतोय ना माझा व्यवस्थित सर्वांना? सर आवाज तुम्ही माझा? हिस्ट्री हा बोल. सर तुम्ही हिस्ट्री बद्दल काय काय शिकवतात? आता मी काहीच शिकवणार नाहीये. आता मी तुला फक्त एक अप्रोच सांगितला हिस्ट्रीमध्ये. एन्शियंट, मेडिवल, मॉडर्न आणि वर्ल्ड हिस्ट्री हे चारही सेक्शन्स येतात. ज्योग्राफीमध्ये इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लायमेटॉलॉजी, ओशनोग्राफी हे सर्व येणार आणि करंट अफेअर्स हे 3 महत्वाचे सेक्शन आणि कॉन्स्टिट्यूशन आणि थोडासा इकॉनॉमीच्या याचा पार्ट आहे. लक्षात आलं? हो सर. लक्षात? ओके, हा. बाकीचं तर आपण जे लोक आता एलिजिबल असतील, जे लोक आता किती लोक एलिजिबल आहेत आता कमिंग एक्झामिनेशन द्यायला ते सांगा मला. आर्यन म्हणजे दोज हु आर इन 11th स्टँडर्ड. ओके, दोज हु जस्ट कंप्लीटेड देअर 11th स्टँडर्ड दे कॅन अपियर फॉर कमिंग 3rd सप्टेंबर एक्झामिनेशन. ठीक आहे, ओके. आणखी 4च लोक आहेत का? 5. हा, अच्छा. आणखी बाकी काय सगळे 9th 10th वालेच आहेत का? अनिश, ओके. आणखी कोण कोण आहे? ज्यांनी 11th आता क्वालिफाय केलं आणि जे आता 12th ला गेलेले आहेत, जून पासून जे 12th ला राहतील ते सगळे स्टुडंट्स एलिजिबल आहेत एनडीएच्या एक्झामिनेशन साठी. त्यांनी 6 जूनच्या आधी, म्हणजे शेवटी 6 जूनला नका भरू फॉर्म, कारण त्या दिवशी फार गोंधळ असतो. आता तुम्हाला आजचं उद्याचं सेशन संपलं की फॉर्म भरा. त्याच्यासाठी तुम्हाला युपीएससीच्या वेबसाईटवरती जाऊन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. फॉर्म भरा लवकर आणि ते रजिस्ट्रेशन केअरफुली करायचं. त्याच्यामध्ये सगळे डिटेल्स व्यवस्थित मेन्शन करायचे. राईट? ओके. ज्यांना सप्टेंबरच्या एक्झामसाठी तयारी करायची आहे त्यांच्यासाठी आमचा एक 3 महिन्यांचा कोर्स सुरू होईल. रेग्युलर असेल तो कोर्स 3 महिन्यांचा, रोजचे 2-3 तासाचा असेल साधारणतः. त्याच्यामध्ये जे काही आपण या 3 दिवसात सेमिनार्स मध्ये घेतोय ते सगळंच्या सगळं शिकवल्या जाईल. ओके, तर ज्यांना त्याच्यामध्ये एनरोल करायचं असेल त्यांनी वेगळा संपर्क करावा. आता फक्त आपण हे ओरिएंटेशन घेतो. ठीक आहे, तर मी आता इथेच थांबतो माझ्या सेशन पुरता. आता नेक्स्ट सेशन जे आहे एसएसबी साठीचे मेंटर आहेत आपले कुणाल, ते आपलं सेशन आता घेणार आहे. ठीक आहे, तर मी लगेच त्यांचं सेशन चालू करतो. त्यांचं सेशन झालं की तिसरं सेशन आहे, परत तिसरं सेशन ते मॅथ्सचं असेल. आणि ज्यांनी एसएसबीच्या इंटरव्ह्यूज वगैरे दिलेल्या आहेत ते उत्तराखंड वरून, डेहराडून वरून ते सेशन घेणार आहेत. तर तिसरं सेशन आजचं त्यांचं असेल. त्याच्यामुळे 1:45 पर्यंत सेशन चालणार आहेत आपले आजचे. ठीक आहे, आणि उद्या डॉक्टर जोसेफ रॉड्रिक्स, इंडियन डिफेन्स एक्सेस सर्व्हिसेसचे ऑफिसर आहेत, त्यांचं सेशन उद्या स्पेशल राहणार आहे. ते ऑनलाईन असेल. ठीक आहे, या सर